Assalamu alaikum. I hope I'm able to join in. Could you please confirm in the chat box that I'm audible to you? A simple yes would suffice so that I know I'm not talking. All right, so most of you are able to listen to me. That's great. And I hope you've started working on your project. I hope you've looked at the score sheet as well. So make sure that you participate in all the steps that are there in, for completion of your project so that you do not lose any scores. Other than that, I think in the last class I showed you two novels. Today we are going to talk about one of them. We are going to start with The Alchemist. I think some of you have already read it. There is this channel called, or it's a website as well. It's called Course Hero. They have professors of different universities presenting certain ideas and information about literary pieces, sorry, including The Alchemist. Any one of you who has already read it and would like to add that what kind of novel is it, what you have learned out of it, and if you know what the main storyline is? If you don't know, you can simply write no so that I know that you don't know and I can start. I'll just tell you um, the overview of the entire novel, of course, and we are going to study three chapters in detail. In your outline, it says the first three chapters, and yes, that is what we are going to discuss as well. So, okay, how many of you know about the novel or the story in the novel? How many of you are aware? And any idea that why is it so famous? You probably have heard about it. It has been very famous for a long time. तो क्यों famous है ये अगर famous है तो? Okay, only Salahuddin knows nothing. The rest of you know everything about it? नहीं पता. Don't know. Okay, right. Well, books they tend to have many sections within it. It could have a preface, an epilogue, or a introductory chapter or introduction, and then certain chapters could be there. If we talk about The Alchemist, it's again a fable. I hope you remember or you can recall what a fable is. It is having a didactic reasoning or teaching behind it. It still wants to teach the audiences about the significance of a journey. Sometimes journeys they are more important than the destinies. Sometimes we have been wanting to get into this university, we've been wanting to get a degree or be part of certain social group, and once we get it, any one of those things, we are not satiated, which means we are not content or satisfied with what we have found out. For example, when I was your age or maybe a little younger, I got scores. I think it was just 0.1% less than for those who could get a laptop. At that time, almost everybody was getting a laptop. That is back in 2015, right? So I had a score. I was a student at Namal as well. I had a score 69.9, and the eligibility criteria was 70%. If it had been, rounded by the department or one of the teachers, I would have gotten that laptop.
So at that time, I didn't have that kind of a money that I could afford one. So I worked hard and I bought a laptop for myself. Later on, when I was in my MS, without even applying, they gave me a laptop and it had no worth. It had no significance whatsoever because earlier when I was doing my masters, I wanted that laptop that could have been given to me for free of cost. But later on, when it was given to me without even applying for it, it had no um, क्या कहना चाहिए value to it. Why do you think that happens? Why do we lose interest in such things? जैसे हमें एक चीज एक पॉइंट पे चाहिए थी वो नहीं मिली और उसके बाद मिले तो we are not happy about it. It also happens with food. If you're craving about or if you're craving a pizza or something that you really enjoy eating और उस पॉइंट पे आपको वो नहीं मिल सकता है लेकिन later on it is presented to you and you no longer wish to eat it. Why does that happen? Why do you lose interest? ऐसा क्यों होता है? What is the of course I cannot ask you to psychoanalyze that or tell me what is the psyche behind it, but what do you think could be the reason? Hmm? Any random thoughts that comes to your mind? मतलब आपको क्या लगता है कि जब एक चीज जब हमें चाहिए ना मिले और बाद में मिले तो उसकी अहमियत क्यों कम हो जाती है? What is the reason? मैम सब चीज़ों की थोड़ा ही अहमियत कम हो जाती है, कुछ की बढ़ भी जाती है। Yes. But I am talking about one side where it decreases. Let's talk about why does it decrease? If it decreases in your case. आपकी लाइफ में भी ऐसे डिसीजंस कहीं ना कभी आए होंगे. Maybe you never wanted to get into um, what is your degree? It's accounts and finance. Maybe you अकाउंटिंग एंड wanted to, फाइनेंस। yes, maybe you wanted to be part of something else. Maybe you wanted to do some kind of engineering. Maybe you wanted to be part of medical studies, or maybe you were more inclined towards arts or fine arts. तो जब आपको वो चीज नहीं मिली या डिग्री नहीं मिली तो क्या फील हुआ आपको? There is a catch. I would like to explain it once one of you or two of you answer that what that could mean कि आप एक चीज की अहमियत क्यों खो देते हैं? Why is that? किसी के पास कोई ओपिनियन नहीं है, ज़ीरो ओपिनियन। अच्छा चलो लेट्स पुट इट दिस वे कि एक पॉइंट पे शायद आप में से सभी इंटरेस्टेड होंगे कि आपके बहुत अच्छा स्कोर आए। जी तासीर, गो अहेड। हाँ जी मैम, बात असल में ऐसी होती है कि जिस चीज़ की चाहत होती है हमें एक टाइम पे, अगर वो चीज़ हमें उस वक्त मिले ना तो उसकी थोड़ी बहुत जो एक्साइटमेंट होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इसके बगैर भी हम अपनी जो लाइफ है वो कर सकते हैं, गुजार सकते हैं। तो इस वजह वेरी से गुड, ये जो एक्साइटमेंट है थोड़ी बहुत। वेरी वेल पुट। आई मीन at that point of time when you wanted that thing, that situation to work out, it didn't work out. You felt a little left behind. You felt burdened. But मैम later बट कुछ on, चीज़ें तो hmm, इंसान की ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि इंसान उनके बगैर मतलब नहीं रह सकता। अगर वो hmm, दोबारा भी मिलें या खो जाएँ तो दोबारा मिलती हैं तो उनकी अहमियत कम नहीं होती और वो बढ़ जाती है पहले से ज़्यादा, और इंसान उनके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता, ना उन्हें छोड़ सकता है, तो फिर उसके उसके लिए क्या होता है? that's another perspective. Can you name some of those things or one of those things that are in your mind हुँ, कि जिनके बगैर हम नहीं रह सकते हैं? पैसा सबसे पैसा, ज़्यादा। okay, interesting. और हम्म, और क्या हो सकता है? मैम कोई इंसान है हम्म, और उसके अलावा would you और कुछ believe if नहीं I ज़हन tell में। you would you believe यस if I मैम। tell you that you can actually live without money and that particular person whosoever is coming in your mind,
You might think at that time, in that particular time, that you won't be able to survive, but God is there. You do believe in what is meant for you will come to you no matter what. Yes, luxurious life के लिए, comfortable life के लिए, respectable life के लिए हमें उस पैसे की definitely ज़रूरत है. That is a known fact. That is a universally accepted fact. But even if people who do not have money, even if those people who, linger from one point to another to find scraps of fruits, they are still surviving. Why is that? वो अभी तक क्यों जिंदा है ना ऐसे लोग? Have you met any one of those जिनके यस पास मैम, एक ऐसे वक्त का हैं, बहुत सारे लोग हैं मैम। हम अगर देखा जाए तो हम खुद भी मतलब उसी कैटेगरी में आते हैं, बट हम हम्म कहते हैं बस ठीक है, अल्लाह की रज़ा की खातिर छोड़ दिया, हम्म ठीक है हम्म जाने दो, बस अल्लाह है ना, तो हम लोग हम्म सर्वाइव कर रहे हैं। ये एक लाइन होती है, एक वर्ड है जो हमें हिम्मत देता है। हम कहते हैं ठीक है यार, कोई नहीं, अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह है ना, हम कर लेंगे, हो जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं कुछ, जिनकी वजह से बस हम लोग करते हैं, चलते हैं। और जब ये सोच आती है कि we put our entire fate into the supremacy of God, that He will take care of us, is also an acceptance of a level that you know that you have limitations as a human, but you're willing to let them go. You're willing to accept the delimitations set for your fate, your journey, your destination, and you still look for meaning. The point being, what I'm trying to highlight over here, then no matter what we think that we won't be able to survive because of this or that, you will always find a way out of it. You will always find another purpose in life. Even those people, वो जो दरवेश हो जाते हैं, वो जो जोक्स बनते हैं कि एक हीरो को हीरोइन नहीं मिली तो वो जाके जी किसी मस्जिद में सफ में साथ खड़ा हो गया, तो वो भी वहां पे भी जाके क्यों खड़ा हो रहा है? ही इज स्टिल लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ मीनिंग. अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही फजूल किस्म का स्टेप उठा लेता है कि एक जिंदगी में एक शख्स नहीं रहा, पेरेंट्स की डेथ हो गई, या गार्डियन नहीं रहा, या जिससे आपको प्यार हो गया वो नहीं रहा, और आप कुछ बहुत ही स्टूपिडिटी कर लेते हैं, तब भी in that very moment you do have that sense of guilt, the sense of doing something wrong. तो clarity तो होती है, हमें पता है कि जिंदगी ने चलना है, it must go on. So what I'm trying to insinuate that all of us, in every capacity or in any capacity, we are looking for meaning. We are looking for something meaningful and for a purpose. Let's say you're 18 students right now in the class, all of you are looking for some kind of meaning. आप में से कोई भी purposeless नहीं है. Maybe directly अभी आप clear नहीं है, what do you want out of your life, but you're looking for some kind of elevation, some kind of journey that will take you somewhere else. Some of you have a goal. आपके पास एक क्लियर कट गोल है, एमएस करना है, सीए करना है, एक्सेट्रा करना है, बैंकर बनना है, बिजनेस टाइकून बनना है, व्हाटसोएवर जो भी आप सोचते हैं, वो आपका एक गोल है. लेकिन it is not a necessity that all of you will be able to make it to that goal. And in between, in that journey, you will find many other purposes of life, many other ways to look at life. And that is what The Alchemist is all about. It wants you to focus on what could it mean if you do not follow the rightful path that you have drawn in your mind about yourself or for yourself. For example, when I was, again आप कहेंगे अपने बारे में बात करती रहती हूँ, but that is the only way I can tell you how life could work out. I have always imagined myself working somewhere and in a capacity that gives me a comfortable surrounding as well. I come from a very humble background, and it was not a thought, a second thought, or a thought for that matter in my family back in 2015 that a woman in my house could work outside and make a living out of herself. Independence is not given to women in my family. It's not something that they will entertain. Even though I managed to, try something out, and I managed to find a way that could balance their, what can we call, their worries and my understanding of life, that I wanted to be independent. तो अब जो बीच की जो जर्नी है उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन है, उसमें बहुत कुछ प्रॉब्लमैटिक भी है और बहुत कुछ खुशगवार भी है. अगर मैं वो प्रॉब्लमैटिक चीजें लेकर परेशान हो जाऊं, या उन पे इफ आई एम hell bound or to be stuck on them, I won't be able to move past it or move forward. So Alchemist ki jo story hai, it's about a young boy again who's looking
for a meaning. He wants to go hunt a treasure. जैसे ज़ुहैब की पहली बात ये थी कि पैसे के बगैर हम नहीं रह सकते, एंड हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो जिसे हम कहते हैं, मेन लीड कहते हैं, उसको भी एक ट्रेजर की तलाश है. He has a dream. He has a dream to become a wealthy man. He has a dream to become a man of importance. He has a dream to become a man of words. वो चाहता है कि दुनिया उसे जाने. क्या आप चाहते हैं दुनिया आपको जाने? For your wealth, for your wisdom, for your नहीं designation, for मैम, your... हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? That is so Yes, rare. ma'am. नहीं मैम। Yes, ma'am. Well, चाहिए. I'm only human, just like Tasir. I have always wanted all of those things. I cannot be so bookish like Zuhaib कि I would deny myself कि मुझे ये नहीं चाहिए. I have always नहीं wanted मैम, money. मैं डिनाई नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जानते भी हैं, इस एज में भी इतना है कि अल्हम्दुलिल्लाह। बट लोगों को क्यों जानना है मुझे? किस वो जितने लोग जानते हैं, वो हर किसी की सोच का ज़ाविया जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। हर किसी का ओपिनियन डिफरेंट होता है। हर कोई अपनी मतलब सोच के मुताबिक एक क्या कहते हैं, एक बाउंड्री होती है, उस हिसाब से ही सोचता है। तो वो हमें कैसा सोचता है, ये उसको इख्तियार नहीं होना चाहिए। क्यों हमें कोई इंसान आकर मतलब सोचना शुरू कर दे कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, क्यों कोई हमें जानने की कोशिश करे? Oh, okay. What is the harm in, you know, knowing somebody? They are not going to say anything to you, of course. वो आपके बारे में कुछ बोलने वाले नहीं हैं. But they have all the entitlement to think about you. And for you to give them to think about you isn't important. You are an existing, living human being. You roam around, you talk to people, you have friends, you have acquaintances, you have circles. उनमें आपकी point बिल्कुल correct है that some of them will only look at you from the biases of their own self-reflection. They might judge you, they might slur at you, they might appreciate you, they might admire you, they might get inspired by you. So there could be so many other things that you can think about. Being self centered should not be one of those. Being self obsessed should not be one of those. Always look at the bigger picture. Always look at what others might be going through. Once you put yourself into their shoes, you probably would see that they are not that evil after all. They are not that um, so different from you. Everybody is looking out for themselves in a chaotic world. The world is a vast world. It is full of feelings, it is full of hardships, it is full of materialistic possessions, and it also does have a spiritual awakening. Some of you might be religious, some of you might be spiritual, some of you might be materialistic. How would you categorize yourself? आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहेंगे? यस सलाहुद्दीन, हम ये बहुत सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और हम ये भी सोचते हैं कि वो क्यों कहेंगे. हाउ डेयर देम. पर वो क्यों नहीं कहेंगे, दैट शुड बी ऑल्सो इन योर माइंड. हम भी तो कहते हैं. खैर, आप मैम लोग हमारा स्टूडेंट्स. नजरिया, हमारी सोच ये नहीं होनी चाहिए कि जो लोग हमें जानते हैं या जिन्हें हम जानते हैं बस वो ही, उन्हीं के बारे में कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इतना काफी नहीं होना चाहिए। जो बाकी जो चौथा पर्सन है वो क्या सोचता है, क्या कहता है, वो भाड़ में जाए, जो मर्जी सोचता रहे, उससे हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल, ही है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए. However, we need to conduct ourselves in certain light. ऐसा ही है ना, हमें अपने वे ऑफ लाइफ को, अपने कंडक्शन को, हम अपने आप को किस तरह से लेकर चलते हैं, जिसे आप कहते हैं ना आज के जमाने में, हाउ यू कैरी योर सेल्फ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ऐसा ही है. For example, if I talk about most of the people that I know, they are audience oriented, they are societal oriented, which means they abide by the rules given by the society. क्या आप रूल्स को फॉलो करते हैं? सोसाइटी के रूल्स, अनसेड रूल्स भी होते हैं कि ये करना है, ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी नहीं है. तो क्या इन चीजों में आप अपने आप को इंडल्ज करते हैं? क्या आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोसाइटी के बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? Yes, ma'am. सोसाइटी में फैमिली भी आती है, सोसाइटी में इमीडिएट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सिबलिंग्स भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, आपका सोशल स्टेटस और आपका सोशल पर्सोना भी आता है. नो मैटर हाउ वाइल्डली वी वुड लाइक टू बिलीव कि लोग भाड़ में जाएं, वी स्टिल केयर अबाउट व्हाट पीपल मे थिंक, और हम अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं.
For example, sometimes I do get angry and I just want to say something very, very bluntly to somebody, but I cannot say so because that is not the job description that I've been given to. Sometimes students can be very soul draining. They could be one very unreasonable, और बहुत bluntly दिल करता है कि डायरेक्ट उन्हें जवाब दिया जाए, बेटा ये क्या मतलब बोगस बातें हो रही, but we cannot. So if I hold myself, am I faking it? Am I being hypocritical? Am I being double faced? Is that so? That is how you will perceive it? If I restrain myself from becoming a little harsh on a situation which is not nice, तो क्या वो गलत बात है कि वो ठीक बात है कि मैं अगर रिस्ट्रेन कर लेती हूँ, मैं थोड़ा सा I take a step back as an instructor, is it a good thing or a bad thing? It's just an opinion, there is no assessment attached to it. Opinion तो आप शेयर कर ही सकते हैं. मैम आप नाराज हो जाएंगी फिर. No, no, why would I? I just need an opinion. For example, for Salahuddin, it's a good thing. This might, save a sensitive student from thinking about that conversation that could have gone so wrong, that could have impacted his or her ability to move forward. Because some of us could be very sensitive. So, me restraining from becoming blunt with students who do really need to get a wake up call also helps them in return. ठीक है, there are other ways to reprimand or there are other ways to tell them what could have been done. ठीक है, तो रिस्ट्रेन करने का मतलब ये नहीं है, स्टेप बैक पीछे लेने का मतलब ये नहीं है कि आप टोटली आप हिपोक्रिटिकल हो रहे हैं. इसका मतलब ये भी है दैट यू अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल, दैट यू एक्नॉलेज कि उनके पास 6 से 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी का बर्डन होता है, फेमिलियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो वो जो एक इंस्ट्रक्टर रिस्ट्रेन करता है अपने आप को, वो भी एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है. Now, this is just a perspective. You are entitled to have another perspective. उसमें कोई गलत बात नहीं है. हर एक को पूरा हक है कि वो जैसे मर्जी सोच सके किसी भी सिचुएशन के बारे में. एनीवे ये थोड़ी सी बाउंड्री से बाहर बात चली जाएगी. हम अब चलते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट पे. लाइक आई टोल्ड यू, आवर प्रोटैगनिस्ट इज द हीरो. हिज नेम इज सैंटियागो. He is a young boy and he found out that there is a treasure somewhere in the other part of the world. Gets a map and he embarks on a journey. वो एक journey पे चला जाता है, and in between that journey he comes across many difficulties. He also learns a lot of life lessons. Then he also learns that worldly possessions, यानी treasure worldly possession में आता है. You understand, right? यानी materialistic good, जो मतलब आप पैसों से जो चीज खरीद सकते हैं, वो उन चीजों के पीछे जा रहा होता है. लेकिन फिर वो बहुत सारे लोगों से मिलता है. He gets to meet many people throughout his journey, and he gets to understand that money cannot be everything. Love alone cannot be everything. Honesty alone cannot be everything. Life is an amalgamation of all these things coming together in a certain context, in a proportion. तो वो जो उसकी realization है, वो सिर्फ फिजिकल नहीं है. एक तो वो फिजिकल जर्नी पे तो जा ही रहा है, लेकिन इट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल फॉर हिम बिकॉज he does understand that the real treasure, the real money, the real purpose of life is not only wealth, love, or materialistic possessions. It's rather wisdom, self discovery, purpose, and spiritual awakening. How many of you are religious? How would you categorize? For example, I'm not religious. Yes, uh, I do follow a religion, but I'm not a disciplined religious person. So, are you religious or spiritual? या आप एक मिस्टिक हैं? क्या आप इन तीनों टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस समझते हैं? Okay, is there a difference between religion and spiritualism?
Hmm? Having no opinions is also an opinion that you lack the basic information about your own स्टेट ऑफ बीइंग। यानी आप अपने आप को भी नहीं जानते। अगर आपके पास अपने लिए ओपिनियन नहीं है तो वो भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। एक सिंपल सवाल है, आर यू रिलीजियस और स्पिरिचुअल? दैट्स इट। इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है क्या? ये सेल्फ डाउट है। द फैक्ट दैट यू आर नॉट आंसरिंग, दैट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ सेल्फ डाउट। और सेंटियागो की जर्नी से, इस फेबल में, वो हमें यही सिखाना चाहते हैं कि सेल्फ डाउट definitely hinders your ability to improve. So tell me whether you're religious or spiritual. Okay, fair enough. Salahuddin believes he's none of those. Now वो spiritual है, now वो religious है. Or what about the rest of you? अच्छा, what is the difference between the two? नहीं पता तो भी बताएं, so I can tell you. नहीं पता आप clearly मुझे बताएं तो मैं बता देती हूँ, कोई मसला नहीं है. Okay, नहीं बता। all right. देखिए, religion is a set of rules, regulations और practices to be followed. ठीक है, कोई भी रिलीजन ले लें, आप ले लें इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जूडिज्म, जूइश, और कौन है, बहुत सारे रिलीजन्स ऑफ कोर्स। उन सब में एक रूल, मतलब एक सेट ऑफ रूल्स है, उनकी अपनी बुक्स हैं टू बी फॉलोड। ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म ऑन द कॉन्ट्रेरी इज समथिंग bigger than that. It is something that has a, you know, vast um, रीच। ठीक है, इनमें सिमिलैरिटीज हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये एक ही चीज है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी हैज टू डू विद इनर awakening, inner journey, inner experiences which leads you to seek meaning. अब देखिए, रिलीजन में आपके पास ऑलरेडी सेट ऑफ रूल्स हैं कि रूल नंबर 1 2 3 4 है, इसको आपने फॉलो करना है। आपने 5 वक्त नमाज पढ़नी है, रोजे, जक़ात और हज और इस तरह की चीजें करनी है, और वो आपने करना है। देयर इज नो सेकंड गेसिंग टू इट, देयर इज नो क्वेश्चनिंग टू इट, देयर इज नो यू नो डाउटिंग इट। आपके पास ये रूल है, आपको वो फॉलो करना है। स्पिरिचुअलिज्म ऑन द कॉन्ट्रेरी इज समथिंग that requires yourself to go on a journey, to embark on a journey, to find yourself, to find your true self. For example, you might have heard about so many people switching from one religion to another one. Why does that happen? Why would somebody switch from Hinduism to Islam, or Islam to Judaism, or Judaism to Christianity? There could be a number of reasons behind it. ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। आई यूज्ड टू हैव अ फ्रेंड व्हेन आई वाज इन कॉलेज। अब ये ऑफ कोर्स, आई यूजुअली डू नॉट लाइक टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, बट बिकॉज इट इज हैपनिंग इन द society, so this might be an inappropriate example. So she was not अब मैं आपको शिया और सुन्नी की एक एग्जांपल देने वाली हूँ। शी was not a Shia, ठीक है, बट शी फेल इन लव, और शी फेल इन, क्या कहना चाहिए, she started liking somebody who was a Shia, and he could not marry her because of this conflict of Shia Sunni. So she converted to Ahle Tashi, and then they got married. There are so many problems that people had about it, like their families, common people, acquaintances, friends। बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत सारे मसाइल दिखे। There were so many people who said that this marriage should not have taken place because they are from different places. Then some of them accused him of luring her into changing her perspective. अब ये जो सारे perspective है, ये जो सारा conflict है, ये कहाँ से
स्टार्ट होता है वही सेट ऑफ रूल्स से। अब शिया और सुन्नी इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, डेफिनेटली दे फॉलो different set of beliefs. They do have shared beliefs as well. They probably have shared rituals as well. But उनमें जो एक communal system है, जो organization है, उसमें difference है. लेकिन spiritualism, on the contrary, could be something else. For example, I have a friend from China. She does not follow any religion. She is an atheist, but she's been living in Karachi. She was a classmate in with to me in Islamabad for 5 years, and then she shifted to Karachi, and eventually she started following the footsteps of Christianity without actually acknowledging that she has converted to a Christian. बहुत सारी चीजें जो रिचुअल्स या सेलिब्रेशंस या जो चीजें वो फॉलो करते हैं उसने नोइंगली अननोइंगली उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया, एंड इवेंचुअली आफ्टर आई थिंक अ decade or so she decided to convert. She decided to take a vow that she will be following the doctrine of Christianity, that she will be going to Sunday meets और प्रेयर्स, और इनकी एक सर्विस होती है संडे को, तो वो अब संडे सर्विसेज में जाती है. She was an atheist, by the way. Atheists are people who do not believe in the existence of any supernatural power, let alone God. And then we have this actor whose name is Tom Cruise. He follows a religion that is entirely based on science. It's called Scienceology. It's at this present moment, it's a cult. But you'll see that eventually, after a decade or even a civilization, there would be hundreds of people following that. तो ये किस तरह से होता है? क्यों लोग इस तरफ जाते हैं? क्योंकि उनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, उनकी ज़िंदगी की जो फ़िलॉसफ़ी है, उन्हें जो ज़िंदगी के बारे में समझ आता है, जितना समझ आता है, जैसे समझ आता है, वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, वो फैशन बेस्ड भी हो सकता है। क्योंकि सब ये कर रहे हैं, तो मुझे भी करना है, ऐसा भी होता है। हर रिलिजन में फ्लेक्स करने वाले लोग होते हैं, शो ऑफ करने वाले लोग होते हैं, जो कि एक्चुअल जो उसकी स्पिरिट होती है उस रिचुअल की, उस प्रैक्टिस की, उसको एक्चुअली फॉलो नहीं करते. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर इज माय पर्सनल ओपिनियन, एंड यू शुड नॉट, यू आर entitled not to agree with me, but I've come across so many people जो हज और उम्रे पे जाते हैं और वापस आते हैं, and it is all about showing off that they've done this, they have achieved this goal. They want to make sure that everybody knows. They go to Kaaba and Makkah to they do these ziyarats. They put so many pictures, videos, vlogging online, showing off that they've done this. Do you think that is the true spirit of a spiritual journey or a pilgrimage, where you go to embark on a journey to meet the certain criterias of your religion, but then you show it off, you become a snob? तो क्या ये एक राइट प्रैक्टिस है? ये बहुत सारा दिखाना, मैम दिखावा जिसे अमाल हम का कहते हैं. हम्म. यस मैम मैम अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। वो अब उनकी नीयत क्या है ये तो हम नहीं ना जान सकते कि किस नीयत से वो कर रहे हैं। True that. That is what, very good. That is what you need to see. That you should always give the benefit of the doubt to the other party. Like I told you, that is my personal opinion. However, your opinion matters too. You believe in the goodness of others. That is a beautiful thing to believe in. कि हमें लोगों की अच्छाई में भी बिलीव होना चाहिए, कि जस्ट बिकॉज उन्होंने 3 घंटे का व्लॉग अपलोड किया है, that does not necessarily mean that they want to show off. That could also mean that they want to inspire. That could also mean that they want to motivate other people, that if there is a will, there is a way. तो दोनों perspectives को लेकर चलना is equally important, and that is how we go on this, ऐसा ही on है मैम। such एक्चुअली uh, मैम होता है hmm, ना कि हम लोग ऐसे हो चुके हैं कि बस वो जो सज़ा और जज़ा का मामला है ना वो लोग हम खुद तय करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कहते हैं नहीं ये गलत है, इसने ऐसा कर दिया है, ये काफ़िर हो गया है, ये मुसलमान हो गया है, इसने शिर्क कर दिया है। तो इस चीज़ का इख्तियार हम हमारे पास नहीं है कि जो है ना हमने उसे देखा तो अब अल्लाह ताला उसे पसंद करता है, नहीं करता, अब उसे सज़ा देगा, जज़ा देगा। ये तो उनका और अल्लाह का मैटर है। हम लोगों को मतलब ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए और ना कहनी चाहिए। शायद हमें इस चीज़ का हक नहीं है। hmm, true that.
You see, I started with the negative perspective so that you can find a positive one for me. I found it very helpful. Students को जब भी मैं कोई negative बात बताती हूँ ना कहीं से वो positive ढूंढ लाते हैं. और जब मैं positive बात करती हूँ तो वो फिर कुछ भी नहीं कहते. तो that has always worked for me. So yes, very good. इसी journey की बात करनी है हमने इस book में. It's called The Alchemist. और of course we need to know the entire story. हमें पता होना चाहिए, लेकिन we are also going to look at the prologue. Do you know what's a prologue? Anybody? कि prologue क्या होता है? अच्छा, एक नॉवल जो होता है, एक पीस ऑफ राइटिंग, ड्रामा भी हो सकता है, नॉवेलेट भी हो सकता है, समटाइम्स पोइट्री की एंथोलॉजी भी हो सकती है, और समटाइम्स टेक्स्ट बुक भी हो सकती है. उसमें एक सेक्शन होता है जिसे इंट्रोडक्टरी सेक्शन कहते हैं, प्रेफेस कहा जा सकता है, प्रोलॉग कहा जा सकता है. मूवीज जो फिल्म्स होती हैं उनसे पहले भी कुछ बताया जाता है, कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी जाती है, कोई नरेशन दी जाती है, तो उसको कहते हैं प्रोलॉग. और इस नॉवल का भी एक प्रोलॉग है जो कि हम we need to read. It is part of your course, so I'm going to read. It's a small, a very short prologue. Let me show you. Give me a minute. Here, ठीक है. Now, this is the prologue that I'm referring to. It is translated by, I hope you know that this book has sold 65 million copies and even more than that. And the books, they usually have a cover. Now, if you look at this, ये cover होता है इस तरह का. इसके बहुत सारे और covers भी available हैं और ये भी है. ठीक है, और इसके बहुत सारे editions भी हो सकते हैं. The edition that we are using is here. Then they have mentioned how international acclaim is there for The Alchemist. I'll just read one or two. A touching and inspiring fable. ठीक है. Um, a most tender and gentle story. It is rare. It is a rare gem of a book and will most certainly touch the very core of every heart, earnestly seeking its own destiny on the journey of life. Like I told you, for some of us, materialistic journey है. जैसे मैं बहुत materialistic हूँ, मैं negative भी हूँ, and I acknowledge, but I always try to find something positive and spiritual out of these things as well. यानी daily life के जो भी chores होते हैं उनमें कुछ ना कुछ ढूंढने की मैं कोशिश जरूर करती हूँ. उसके बाद rarely do I come across a story with the directness and simplicity of Carlos Alchemist. It lifts the reader out of time and focuses through a believably unlikely story of a young dreamer looking for himself. A beautiful story with a pointed message for every reader. अच्छा, ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये इनको आप रिव्यूज कह सकते हैं, इनको आप सेल्फ रिफ्लेक्शंस कह सकते हैं. अब जितने भी ये राइटर्स हैं, जैसे ये फोकस कोई probably मैगजीन है, Charlotte Zolotto, the author of If You Listen, that she's another, I believe, a novelist. तो इन सब की जो रिफ्लेक्शन है सेम बुक की, वो सिमिलर भी होगी और डिफरेंट भी. डिफरेंट क्यों होगी? लाइक आर पॉइंट ऑफ व्यूज. जैसे अभी जो हमने डिस्कशन की थोड़ी देर पहले, हम सबके पॉइंट ऑफ व्यूज एक दूसरे से डिफरेंट है. कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट या बेहतर नहीं है दूसरे से. सबकी अपनी फिलॉसफी और अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लाइफ है, जो कि दोनों पर्सपेक्टिव से रिस्पेक्टेबल है. और ये काफी इन्होंने यहाँ पर और भी देखें. द एल्केमिस्ट इज लाइक अ मॉडर्न डे अ लिटिल प्रिंसेस, अ सुप्रीम एंड सिंपल बुक. Then comes a forward. Forward is again, it's about the publication कि ये कैसे publish हुआ और कैसे start हुआ और उसकी क्या कहानी है. ये usually writer लिखता है. It's an introduction, a kind of a introduction. When The Alchemist was first published 25 years ago in my native Brazil, no one noticed. A bookseller in the northeast corner of the country told me that only one person purchased a copy the first week of its release. I took another 6 months for the bookseller to unload a second copy, and that was to same person who bought the first one. And who knows how long it took to sell the third one. So you see, the writer
आफ्टर सो मेनी ईयर्स जब उसने ये लिख लिया, उसके बहुत सालों बाद एक फॉरवर्ड लिख रहा है, यानी एक सेल्फ रिफ्लेक्शन लिख रहा है कि मेरी किताब तो आसानी से पहले भी की ही नहीं थी। जैसे हमारे जो पाकिस्तानी उर्दू राइटर्स हैं, व्हेन दे वर अलाइव दे वर नॉट चेरिश्ड, पर जैसे ही उनकी डेथ हो गई वो एक लेजेंडरी फिगर बन जाते हैं। जैसे उसमें हमारे पास सादत हसन मंटो है, इस्मत चुगताई है, किशोर नाहीद है। इन सारे लोगों को पढ़ने से मना किया जाता था क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल चीजों पे बड़ा ओपनली लिखते हैं। दे रियली डोंट केयर अबाउट व्हाट द सोसाइटी वुड से। मंटो को तो बार बार पुलिस ही उठा कर ले जाती थी। जैसे जॉन इलिया है, जॉन इलिया को भी controversial, I do not believe कि वो controversial है, but there are so many people who are hesitant to teach them in उर्दू literature. उर्दू के डिपार्टमेंट में जाएं तो बहुत सारे जो राइटर्स हैं वो बैन है, हम उनको नहीं पढ़ा सकते, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में उन्हीं को पढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग जो हैं, जो मैंने रियलिटी मैंने है। पढ़ा है ना वो हम्म, हम्म, सादत हुसैन मंटो साहब को, असल में वो बहुत ओपनली बोलते थे। वो जो भी बात थी ना, लाइक हम्म, अच्छी है बुरी है, अगर मैं दूसरे सेंस में कहना चाहूँ कि एक इंसान बिना कपड़ों के खड़ा है ना, तो वो उसी तरीके से उसको अपने जो है ना लिटरेचर में डिफाइन करते थे, बताते थे कि ये ऐसा है, इसका ये है, वो है। तो वो इस वजह से, इन चीज़ों की वजह से और थोड़ा सा पॉलिटिक्स की वजह से जो है ना, उनको बैन कर दिया गया था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, इनको नहीं पढ़ाना चाहिए, ये बहुत ब्रॉड है। तो हम्म। ये चीज़ है। ट्रू इनफ। हसन जो थे, यानी सादत हसन मंटो जो थे, वो लिखते थे। अब देखिए, अगर एक फीमेल करेक्टर है, उसने कपड़े पहने हैं, उसकी आस्तीन है, तो आस्तीन को वो आस्तीन ही कहेगा ना, और क्या कह सकता है। यस मैम। अच्छा, वो इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, ठंडा गोश्त। अब इसके बहुत सारे controversial meanings हैं. He talks about how women are taken as pieces of meat only. They are not treated as humans, but only a part of flesh, that they are treated as a comfort only, like chickens. एक allegory और एक simile वो use करते हैं कि chickens को खवातीन से वो metaphorically represent करते हैं कि it's always मैम like, इन्हीं वजह से जो है ना वो बैन है। hmm, I know. I'm telling the rest of them so that they know as well. And I don't think he should be banned because he says what he feels, and that is the prerogative and entitlement of a writer. अगर हम अंग्रेजों को पढ़ सकते हैं, उनकी इंसेस्ट बेस्ड स्टोरीज पढ़ सकते हैं, तो हम हमारे राइटर्स की नेकेडनेस इन वर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स क्यों नहीं पढ़ सकते? लेकिन ये अलाउड नहीं है। मैम अभी देखिए भी ना, यहाँ प्रॉब्लम पर है। भी बात वही आती है ना कि बस ये हम्म, हमारी नीयतों का जो है ना तोड़ फोड़ है, कि हम लोग बस उन्होंने क्या सोच के लिखा है, हम लोग उस चीज़ को नहीं जानते। बस हमने जो देखा, जो सुना, जो पढ़ा, हम बस बोलना शुरू कर दिया। हम लोग को जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो हैं सारे, उनकी मतलब अच्छी बुरी चीज़ें सब देखते हैं और उनको अप्रिशिएट करेंगे, कहेंगे, उनसे हम लोग जो है ना सबक सीखते हैं कि नहीं, हमने ये काम ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। लेकिन वही चीज़ अगर किसी हमारे ने अडॉप्ट की है, तो वहाँ पर हम लोग जो है ना हैंड्स ऑफ कर देते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं कि ये गलत है, इसने गंदा कहा है, इसने अच्छा कहा है, ये वो, ये सारा कुछ ये चलता है हमारी इस कंट्री में ख़ास तौर पर। एब्सोल्युटली। सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं बेटा, इट्स एवरीवेयर। अपनी एग्जिस्टेंस को ग्लोरीफाई कोई भी नेशन उस तरह से नहीं करती। अब अंग्रेजों को ही ले लें, दे हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन अस, द साउथ एशियन कंट्रीज, द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। दे हैव द अडेसिटी टू राइट अबाउट अस विदाउट बीइंग पार्ट ऑफ अस। तो हमारे बारे में अच्छा बुरा मिक्स सब लिखते हैं। हाउ कैन दे टॉक अबाउट अस, और हाउ कैन दे गिव अस अ वॉइस सिंस दे हैव नॉट लिव्ड आवर लाइव्स? वो हमें कैसे जज, फ्रेम और लेबल कर सकते हैं? पर वो करते हैं। सेम गोज फॉर अस। अब जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, मेरी दो कोलीग्स हैं, एक ने जो है वो रुटलेज के साथ पब्लिश किया है, और एक ने अलहमरा यानी पाकिस्तानी पब्लिकेशन। तो जिसने अंग्रेजी यानी रुटलेज के साथ पब्लिश किया है उसको बहुत वाह वाह मिली, और जिसने अलहमरा पब्लिकेशन के साथ की उसको वाह वाह नहीं मिल रही। पब्लिश तो दोनों ने की है ना, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों की बुक्स, दे हैव डीप मीनिंग्स। बट हमारा एक अमेरिकन ड्रीम है, हमारा एक इम्पीरियलिस्टिक माइंडसेट है कि जो बाहर की चीजें हैं ना वही अच्छी हैं, हमारी अच्छी नहीं। तो वही वही बात ये करने वाला है। एल्केमिस्ट के साथ, इस बुक के साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब तक ये ट्रांसलेट नहीं हुई दूसरी लैंग्वेजेस में, किसी और कंट्री ने इसको पिक नहीं किया, तब तक वो एक इंटरनेशनल सेंसेशन नहीं बनी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट दैट हाउ शोइंग ऑफ, हाउ being part of the international conversation or a conversation is always important.
There is another writer, she's a female writer, Kishwarna Heat. She has written a book called Buri Aurat, in which she, mockingly talks about if a woman is highly educated, then she's not fit to become a mother because she will be too intellectual to become a mother. Look at that mockery. Mockery का मतलब है बड़ा sarcastically वो इस बारे में बात करती है कि एजुकेशन का fertility से, प्रोडक्शन से या एक माँ या बच्चा पैदा करने से क्या ताल्लुक हो सकता है, लेकिन दिस इज हाउ men of the society and other women of the society also see it. तो अगर इस तरह की बुक्स आप पढ़ें, अपना लिटरेचर पढ़ें, तो you'll see where you lie. You'll see how you're perceived internationally. One of you said that you really don't care कि लोग क्या सोचते हैं और लोग भाड़ में जाएं, but that also impact you not as an individual but as a collective group, as a nation, as a bird of a flock. You represent Pakistan, you represent Muslims, you represent your household, you represent your city or your zilla or your district. कहीं ना कहीं आपकी identity में बहुत सारे flavors हैं. So you should care how you are perceived. You shouldn't care if they malign you. You shouldn't care अगर वो they do you dirty. But to carry yourself in a certain light is also your responsibility. And therefore, there are two perspectives that you should always have in your mind. Positivity भी देखें, दूसरों की limitation भी देखें, और फिर अपने लिए डिसाइड करें. किसी ने कुछ कह दिया तो उसको ब्लाइंडली फॉलो करना, तो उसे ब्लाइंडली बिलीव करना जरूरी नहीं होता. That is what the book wants us to understand as well. By the end of the year, now going back to this forward, by the end of the year, it was clear to everyone that The Alchemist wasn't working. My original publisher decided to cut me loose and cancelled our contract. They wiped their hands of the project and let me take the book with me. I was 41 and desperate. देखिए, एक राइटर के लिए एक्नॉलेज करना कि वो डेस्परेशन की तरफ, डेस्परेशन इज नॉट अ नाइस फीलिंग. It is not something to boast about. It is not something to be happy about. And he does see it. और देखिए, एक राइटर ही है जो इस तरह से सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकता है. क्या आप में करेज है अपनी लिमिटेशंस को, अपनी फेलियर्स को अपने माथे पे पहन कर चलना? वेल, आई हैव कम अक्रॉस स्टूडेंट्स जो बहुत ही कैजुअल वे में फेलियर्स को उनके बारे में बात करेंगे एंड देन दे मूव ऑन. मतलब कि वो उसको एज अ स्टेपिंग स्टोन, एज अ लेसन, एज अ मोटिवेशन लेते हैं और वो उस पर काम करते हैं और आगे मूव ऑन करते हैं. बट देन आई हैव मेट स्टूडेंट्स जो दे ऑलवेज फाइंड अ वे टू पुट द ब्लेम ऑन अदर्स. सिस्टम की गलती है, टीचर का दिमाग खराब है, मैंने तो 4 पेज लिखे थे, उसमें 4 नंबर कैसे आ सकते हैं? दे विल नेवर सेल्फ रिफ्लेक्ट. दे विल नेवर फाइंड अ मैम वे. होता है ना ऐसे, ये तो हकीकत भी है. ओके, यस, तो हकीकत भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द मैम टाइम्स. देखें, जो हम्म. हमारा मतलब ये जो सिस्टम है, या अगर टीचर की बात करें, टीचर भी तो खुदा तो नहीं होता ना, नाउजुबिल्ला, या वो फरिश्ता तो नहीं होता ना कि उससे गलती नहीं हो सकती. अगर हम्म. टीचर अपने आप को ये समझना शुरू कर दे, तो फिर इसका मतलब है कि वो किसी और लेवल पर चला गया. हम तो फिर उसे बीट नहीं कर सकते, लेकिन वो ऐसा नहीं होता. उनसे भी गलती होती है. लेकिन हम्म. अगर गलती जो ज़्यादातर डाली जाती है वो स्टूडेंट्स पे डाली जाती है, नहीं आप लोग नहीं पढ़ते, आप लोगों ने नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया. तो फंसते हम लोग हमेशा स्टूडेंट्स ही हैं. ऐसा नहीं है. आई एम अ टीचर एंड आई कैन टेल यू आई हैव लैंडेड माई सेल्फ इन सो मेनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ सच स्टूडेंट्स who have always taken liberty of all the situations. Let me put it into an example. For example, online classes हैं, बहुत ही धड़ल्ले से, बेशर्मी से स्टूडेंट आके कहते हैं कि इंटरनेट नहीं था. बट बिटवीन स्टूडेंट्स एंड आई नो आज के दौर में कोई बच्चा इंटरनेट के बगैर रहता ही नहीं है. अनफॉर्चुनेटली कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं कि इंटरनेट गवर्नमेंट ने बंद किया हो, लेकिन बाय चॉइस नहीं आते. उसके बाद पेपर खाली होने के बाद उनमें इतनी कॉन्फिडेंस होती है या इतनी सोच होती है कि हम मांगने जाएंगे. आई मीन yesterday I met a student from another university. His paper was empty. अनफॉर्चुनेटली वो किसी ऐसी सिचुएशन में है कि अगर वो एग्जाम पास नहीं करता है ना, तो वो एक टर्मिनोलॉजी उसने यूज की, रेलीगेट हो जाएगा या पता नहीं क्या हो जाएगा, प्रोबेशन से आगे का जो कोई स्टेप होता है. तो सीज्ड अब हो जाता है मैम. सीज, हाँ शायद ऐसा ही. तो वो चाह रहा था कि मैं उस खाली पेपर को उसको 20 में से कम 11-12 नंबर यानी 60% स्कोर दे दूं. इज दैट फेयर टू आस्क? नो,
नो मैम। And that happens, and that has a toll on me as well. मुझे बड़े I feel मैम एटलीस्ट bothered. लिखा तो होना चाहिए ना पेपर में, जो आप सवाल पूछा गया है, लाइक डिफाइन हम्म इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड लिटरेचर, एक सवाल आया हम्म है, उससे रिलेटेड अगर 4-6 वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो फिर तो टीचर को चाहिए कि वो नंबर दे, वो अच्छा, मतलब मतलब थोड़ा 12 सा नंबर दे कंसेशन दे कर दे। 20 नंबर के नहीं सवाल मैम, में। 10। अच्छा मैम सही है, देखिए, अगर ठीक वो है। 5 नंबर का सवाल है तो एटलीस्ट टीचर को चाहिए कि वो कम से कम 2 नंबर तो दे सकता है ना, 3 तो दे सकता हम्म है। लेकिन मैंने हम्म टीचर ऐसे भी देखे हैं इस नंबल यूनिवर्सिटी में, जो 1-1 नंबर से बच्चे को फेल कर देते हैं। वो नहीं देते नंबर, वो कहते हैं नहीं हम्म ये चीज़ नहीं है, तुम लोगों ने नहीं पढ़ा। मतलब लाइक वो अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू कर देते हैं कि हम लोग जो है ना जैसे अर्श से उतर के आए हैं, आगे जाकर टीचर्स को जैसे जवाब देना ही नहीं पड़ेगा, उनसे तो पूछा ही नहीं जाएगा ना कि हाँ, आपने हम्म बच्चे को नंबर क्यों नहीं देखे। अच्छा, मैंने ये हम्म टीचर से एक मर्तबा ये चीज़ डिस्कस की ना, तो वो आगे से मुझे कहती हैं कि जो है ना मैं हलाल करती हूँ, मैंने हलाल करना है ना। तो मैंने कहा मैम, क्या बरोज़े महशर जाकर आपसे यही सवाल होगा, आपसे यही पूछा जाएगा कि आपने हलाल यहाँ पर ही किया, आपने बाकी चीज़ों में कोई चीज़ नहीं हलाल करनी, बाकी नहीं देखना, आप लोगों को हलाल हराम यहीं पे नज़र आता है। तो देन वो फिर बिल्कुल खामोश होगी और फिर कहती हैं उन्होंने उस स्टूडेंट को नंबर भी दे दिए थे, वो बच्चा फेल हो रहा था 3-4 नंबर से। तो ये चीज़ भी मैंने फेस की है हम्म इसी नवल यूनिवर्सिटी में ही इन हम्म सेमेस्टर्स के दौरान। आई वॉज पार्ट ऑफ अनदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो वो थोड़ी सी चिल यूनिवर्सिटी है, बहुत ही एक्स्ट्रा चिल यूनिवर्सिटी है ना। तो अब वहाँ क्या होता है कि somehow the papers are made in such a way that the students should know. I left that place because मुझे बहुत bother कर रही थी. It paid much मगर botherance double हो गई थी, तो I had to leave. अब वो चाहते थे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी, क्योंकि उनकी फीस बहुत ज्यादा है, वो काफी लाखों में पेमेंट करते हैं, तो फेल नहीं करना चाहती है किसी भी केस में। अब मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव दे रही हूँ, आप लोगों को बहुत रोजी और फ्लावरी लगता है द अदर साइड, बट इट्स नॉट, इट्स आल्सो थॉर्नी, इट्स वेरी बैड फॉर many of us. If there are experiences that you have come across as a student, then there are experiences that teachers have come across as teachers as well, and they are sometimes out of proportion. मतलब बंदा वाकई speechless हो जाता है that how to handle it. Now, ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, स्टूडेंट्स के भी होते हैं, इंतजामिया के भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं, और टीचर्स के भी होते हैं, लेकिन टू ओनली थिंक कि ये सिर्फ उनका इशू है या उनके दिमाग में खलल है, दैट इज ऑल्सो वेरी मच जानिबदार, दैट इज ऑल्सो वेरी सेल्फ सेंटर्ड. द फैक्ट दैट यू हैव मेंशन दैट there are certain teachers who would fail you with 1 mark. Would you believe my PhD professor failed me because of 1 mark? I needed 70, she gave me 69. And this मैम happened like क्यों, क्या 4 वजह years थी? ago. There was no reason. There was zero reason. मैम We had उनको never घमंड had. होता है कि हम Nahin, मतलब nahin. लाइक ऊपर You वाली don't सीट get पे it. बैठे हुए हैं। Uh-huh. Let me get to it. Let me finish first. It was not about Ghamand. ओके It was मैम। not about something personal. We had never कोई conversation, कोई conflict कभी हुआ ही नहीं. होता है ना, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, मैंने कोई बदतमीजी की यस हो, मैम। या उन्होंने मुझे कुछ कहा हो कि सादिया तुम्हें कुछ नहीं, नो नथिंग, देयर वाज नथिंग, इट वाज जस्ट दैट. फिर वही बात है, आई वाज साइलेंट बिकॉज आई फेल्ड, एंड आई फेल्ड एट पीएचडी लेवल. दैट वाज अ शॉक. मतलब बहुत बड़ी बात है और बहुत छोटी सी भी है. इवेंचुअली उस पॉइंट पे मैं नहीं कहूंगी, जब मैं फेल हुई तब मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन अब मैं इस पे हंसती हूँ. लेट मी टेल यू व्हाई. बिकॉज शी रियली डिड नॉट केयर. उन्होंने जाकर मिड टर्म, और जो हम मिड टर्म हमारा सिटन एग्जाम नहीं होता, हमारे पेपर्स होते हैं और असाइनमेंट्स होते हैं और ऐसा कुछ होता है, तो वो सारा कुछ उन्होंने जो मार्किंग की थी, उन्होंने मुझे जो जो नंबर दिए, 20 में से 50 में से 60 में से जितने भी देने थे, उन्होंने वो दिया, कंपाइल किया और सबमिट कर दिया. शी डिड नॉट ट्राई टू मैनिपुलेट द रिजल्ट, शी डिड नॉट डॉक्टर द रिजल्ट. ठीक है, दैट इज ऑल्सो. अब देखिए, 3 पोर्शन है, लेट्स कॉल इट इंटरनल स्कोर्स, मिड टर्म एंड फाइनल टर्म. उनको जितने अप्रोप्रिएट लगे उन्होंने मुझे मिड टर्म में दिए, फाइनल टर्म में दिए और इंटरनल्स में दिए, और उन तीनों को जो उनका सॉफ्टवेयर था उसमें अपलोड कर दिए, और उन्होंने वो टोटल नहीं देखे. इज दैट सो रॉन्ग? उन्होंने तो अपना काम किया ना. शी इज सपोज टू इवेल्युएट मी ऑन द बेसिस ऑन ऑफ 3 पर्सपेक्टिव्स, मिड टर्म, इंटरनल्स एंड फाइनल टर्म्स. उनको जो मुझे स्कोर देने थे उन्होंने दे दिए. उन्होंने एक पॉइंट के लिए नहीं देखा कि मुझे 1 नंबर की जरूरत है टू गेट अ बी इन दैट पेपर. तो मैम आई आपने वेंट उनसे ना. बोला नहीं कि मुझे 1 नंबर चाहिए?
No, I did not go. I am not that kind of a student because I आप respect the क्यों मैम? authority of. मैं अथॉरिटी रिस्पेक्ट करती हूँ हमेशा ही की। आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट मैम ये जनरेशन। अथॉरिटी रिस्पेक्ट नहीं है, ये शायद ये आपने कुछ और सोचा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक कि स्टूडेंट ये चीज़ कभी भी नहीं सोचता। ओके फाइन इनफ, यू आर एंटाइटल्ड टू थिंक दैट वे, बट आई नेवर वेंट टू हर। आई डिड नॉट। फिर उन्हीं की क्लास में, अच्छा देखिए किस्मत करनी, देखिए नेक्स्ट टर्म में भी आई हैड अ कोर्स विद हर। अब मुझे तो पता था दैट मतलब माय लेवल ऑफ राइट अप और माय लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या जो भी मेरी कैपेसिटी है, शी डज नॉट सी देम फिट बिकॉज आई हैड वंस फेल्ड इन हर कोर्स। ठीक है, पहले मैं क्लास में पार्टिसिपेट किया करती थी, फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा कोई फायदा ही नहीं, लाइक योर सेल्फ आई गॉट डिसहार्टेंड, मैंने कहा क्या जरूरत है, फेल ही हो जाना है तो मैं क्यों पढ़ कर जाऊं। मैं चुप। अब शी नोटिस्ड, शी सेड सादिया मैम व्हाट्स आप रॉन्ग, हमें यू आर तो नहीं नॉट। करेंगी फेल? आपका पता नहीं, बाकी तो पास हो ही जाएंगे। आप देख लें अभी तक इसका आपका मिड मतलब है टर्म का मैम आपने मुझे स्कोर फेल दिख नहीं करना है, जा रहा। आपने बदला लेना है मुझसे। ना पढ़ो ना बेटे, क्लास में आओ, आप आते नहीं हो। यू लुक अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड, विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस सेपरेटली, नॉट इन द क्लास प्लीज। ये बात हम अलग से कर सकते हैं। एनीवे, ओके अब मैम। दूसरा कोर्स जो है उनके साथ मैंने पढ़ना है, मैं परेशान हूँ, व्हाट विल हैपन। आई एम डेस्परेट टू पास, आई डू वांट टू गेट माय डिग्री, मैं चाहती हूँ कि मैं अगले स्टेप में जाऊँ। और अब मैं, लेकिन मैंने जाके उनसे नहीं कहा कि मैडम आपने मुझे पिछले कोर्स में जी एक नंबर से फेल कर दिया था, तो मैं तो बहुत डर गई हूँ, मुझे आपसे डर लगता है, आप तो रिवेंज लेंगी, आप तो ऐसी हैं, आप तो वैसी हैं। फिर आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, आई, बिकॉज जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, थोड़े बड़े होते हैं ना, तो हमें अपनी लिमिटेशंस, कमियां समझ भी आती हैं, समहाउ पता भी चलता है। तो अब जब मैं अपने पुराने पेपर्स पढ़ती हूँ ना, अपना थीसिस पढ़ती हूँ मास्टर्स का, एमफिल का, इट इज सो 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 बेसिक, उसमें इतने मिस्टेक्स हैं। ओवर द इयर्स मुझे समझ आ गया कि वो इतना प्रॉब्लमैटिक है, वो इतना, आई वुड कॉल इट लाइक गंदा है, इट नीडेड सो मच मोर एफर्ट। लेकिन उस लेवल के हिसाब से शायद ठीक था, लेकिन अब जब मैं थोड़ी और बड़ी हो गई हूँ, मुझे ज्यादा पता चल गया कि ये चीजें इस तरह से हो सकती हैं। आई अप्रिशिएट द हार्ड टाइम दैट दे गेव मी, आई एक्नॉलेज दैट दैट हार्ड टाइम, दैट फेलियर्स, they made me what I am today. I'm more confident. I'm not scared of failures. I am not skeptic. मैं bitter नहीं हूँ. I'm hopeful. ऐसा नहीं है कि मैं सेंट हूँ, मुझे बुरा लगता है, मेरा भी दिल खराब होता है, हफ्तों दिल बुरा रहता है, लेकिन फिर बाद में समझ आता है कि आई विल नॉट बैक डाउन। सो रेजिलियंस, द थीम ऑफ रेजिलियंस इज समथिंग, और द पॉइंट ऑफ रेजिलियंस यानी आपने डटे रहना है। आपने कहा टीचर्स अपने आप को मिनी गॉड समझ लेते हैं, लेट देम। आप तो नहीं है ना, आपने तो वो रिजेंटफुल वर्शिपर नहीं बनना ना उनका, आपने तो वो फॉलोवर नहीं बनना ना, आपने डिफरेंट बनना है, आपने एक सोल्यूशन ढूंढना है। ये बहुत किताबी बात लग रही है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, you'll understand that most of the things that we took so seriously when we were younger, they were just a laughing matter. लेकिन आप अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट हैं, there is nothing wrong with it, there is nothing inadequate about it. जो इस वक्त आप फील करते हैं, I understand, you feel cornered maybe, you feel like everybody is, you know, against you, but that is not the case. Sometimes our own actions, sometimes our own lackings are there in front of us, but we refuse to acknowledge it. That is also a perspective. फिर eventually उन्हीं उन्हीं ने मुझे B plus भी दिया. She has never given B plus to anybody. ठीक है, क्योंकि आई गॉट एन अंडरस्टैंडिंग व्हाट शी वांटेड। वुड यू बिलीव कि एक टीचर मुझे उसी लेवल पे ए भी दे रहा है और एक मुझे पास भी नहीं कर रहा है। सो शुड आई बी अगेंस्ट द टीचर who did not pass me? No, that's wrong. Again, that is being judgmental, that is being self-centered, that is being कि इस वाली ने तो दे दिया, तो वो वाली अपने आप को क्या समझती है, उसने मुझे फेल कर दिया। उनका क्राइटेरियन और है, उनका सब्जेक्ट और है, उनका एम गोल और जो उसका आउटकम होना चाहिए सब्जेक्ट का डिफरेंट है। देखिए रिसर्च मेथोडोलॉजी इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट एंड पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। बिकॉज आई एम वेरी वेल वर्स्ड विद पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर, तो उसमें मैं आसानी से पास हो गई, स्कोर भी आ गया। लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड व्हाट आई डिजाइंड in my paper was not sufficient, and I still have my paper, by the way. I got it photocopied and I always cherish it because it tells me that I have evolved, that I have improved,
that I can be a better version of myself. So that is how I look at things after many years, by the way. ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे मुझे ऐसा फील हो रहा था, ये बाद में मैं बता रही हूँ आपको. तो ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद क्या है कि इट्स नेवर टू लेट to come out of your own comfort zone and shell, to come out of your resentments. आपका ये जो एंगर है, रिजेंटमेंट है दुनिया की लोगों की तरफ, उससे बाहर आना कोई भी पॉइंट ऑफ लाइफ में आप आ सकते हैं. ये कभी भी लेट बात नहीं है. एनीवे, गोइंग बैक टू द राइटर, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट जब वो 41 का हो गया और डेस्परेट. बट आई नेवर लॉस्ट फेथ इन द बुक और एवर wavered in my vision. Why? Because it was me in there, all of me, heart and soul. I was living my own metaphor. A man sets out on a journey, dreaming of a beautiful or magical place in pursuit of some unknown treasure. At the end of his journey, the man realizes the treasure was with him the entire time. I was following my personal legend, and my treasure was my capacity to write. And I wanted to share this treasure with the world. अब देखें, अगर मैं अपनी एग्जाम्पल को इसमें आपको कोरिलेट करने अगर चाहूँ तो आई सिंपली टेल यू कि मुझे तो उस डिग्री में इंटरेस्ट था ना. मैं एक प्रोफेसर की वजह से डिसहार्ट होकर सबको क्यों काटना शुरू कर दूं? व्हाई शुड आई बी दैट? व्हाई शुड आई बी सो जजमेंटल? Why should I dictate one of my failures to overshadow my other successes? इस तरह से सोचना भी एक बहुत फ्रूटफुल सोचना हो सकता है. और इसी तरह हमारे राइटर ने भी किया कि ठीक है, उसकी किताब ही नहीं बिक रही, टोटल 3-4 कॉपियां बिकी हैं और उसको शेल्फ से भी हटा दिया गया, लेकिन he was still adamant, he was still resilient to get it out there, so he did not let go. As I wrote The Alchemist, when you want something, the whole universe, ये लाइन आपने सुनी होगी, एक हिंदी मूवी है उसमें भी है, जिसमें शाहरुख खान भी है. वो कहती है ना, अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उस से मिलाने में कंस्पायर करती है. तो ये जो लाइन है, इट इज फ्रॉम एल्केमिस्ट. डू यू नो दैट लाइन? देखी हुई आपने वो मूवी? यस टीचर. तो कभी सोचा आपने कि वो लाइन, अब आप मूवीज को फनी समझते हैं, यू फाइंड दोस मूवीज टू बी फनी, बट दे डू हैव अ बैकग्राउंड एंड दे कम फ्रॉम सच नॉवेल्स, सच एक्सपीरियंसेस. सो व्हेन यू वांट समथिंग, द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू हेल्प you. So therefore, if you want something, and if you really want something, no matter how bad of a level hardships you go through or conspiracies you have to find out yourself into, you will always find a way out of it. And I did. मैंने कोर्स वर्क पास किया, मैंने कॉम्प्रिहेंसिव पास किया, आई एम अबाउट टू सबमिट माई थीसिस एज वेल. अगर मैं उस बात को दिल पर लेकर अपना ग्रज होल्ड कर लेती तो शायद मैं वही रह जाती. आई हैव क्लासमेट्स जिन्होंने इसी तरह के ट्रीटमेंट के बाद यूनिवर्सिटीज शिफ्ट कर ली, बिकॉज दे हैड द मनी एंड द लग्जरी टू शिफ्ट, तो उन्होंने शिफ्ट कर ली. उनके पास अब डिग्रीज भी हैं, मेरी डिलेड है, मेरी वहीं पर है, लेकिन उनके पास आ भी गई है. तो जस्ट बिकॉज दे शिफ्टेड एंड दे डिड इट अर्लियर डज नॉट मीन कि उनकी जर्नी मुझसे बेहतर है या मेरी जर्नी उनसे बेहतर है. सबकी जर्नी अलग है और सबको सबकी जर्नी को एक्सेप्ट, रेलिश और रिस्पेक्ट करना चाहिए. ओके, वन ओपन and the publisher on the other side believed in me and my book and agreed to give The Alchemist a second chance. Slowly, through word of mouth, it finally started to sell 3,000, then 6,000, etc., etc., gradually throughout the year. 8 months later, an American visiting Brazil picked up a copy of The Alchemist in a local bookstore. He wanted to translate the book and help me find a publisher in US. HarperCollins agreed to bring it to an American audience, publishing it with great fanfare, ads in the New York Times, and etc., etc. But it still took some time to sell, slowing, finding an audience in the United States. आप देख रहे हैं, वो एक जर्नी में एक जर्नी बता रहा है. एक तो हम उसकी जर्नी पढ़ने वाले हैं थ्रू द बुक, दूसरी जर्नी वो जो हमें बता रहा है कि वो पब्लिकेशन कैसे, हाउ डिड इट टेक प्लेस of word of mouth, just as it did in Brazil. And then one day, Bill Clinton was photographed leaving the White House with a copy. Then Madonna raved about the book to Vanity Fair, and people from different walks of life, from Rush Limbaugh and Will Smith to college students and soccer moms, were suddenly talking about it. So it became a talk of the world, not of the town, but the world. The Alchemist became a spontaneous and organic phenomenon. The book hit New York Times bestseller list, an important milestone for the author, and stayed there for more than 300 weeks.
It has since been translated into more than 80 different languages, the most translated book by any living author. People continue to ask me if I knew that Alchemist would be such a, big success, huge success. The answer is no. I had no idea. How could I? When I sat down to write Alchemist, all I knew is that I wanted to write about my soul. I wanted to write about my quest to find my treasure. I wanted to follow the omens because I knew even then the omens are the language of God. ये जो इसका chunk है, that is the hope, that is the motivation, that is the inspiration that one should get out of this journey. कि बहुत सारे failures, बहुत सारे साल shadow में गुजारने के बाद, finally he found himself in the center or in the first line, in the first row. Though The Alchemist is now celebrating its 25th anniversary, it is no relic of the past. The book is very much alive, like my heart and like my soul. It continues to live in every day because my heart and soul are in it, and my heart and soul is your heart and soul. I am Santiago, the shepherd boy in search of my treasure, just as you are Santiago, the shepherd boy in the search of your own. Now, this is for you, for all of you. ठीक है, दिस इज फॉर यू कि आपकी जर्नी जैसी भी है आपकी है एंड इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. यू मस्ट नेवर कंपेयर इट विद एनीबॉडी. ये बड़ा मुश्किल है बाय द वे कि अपने आप को हम दूसरों से कंपेयर ना करें, लेकिन नहीं करेंगे तो थोड़ा सा पीस रहेगा, करेंगे तो मेरी तरह परेशान रहेंगे. ठीक है. द स्टोरी ऑफ वन पर्सन इज द स्टोरी ऑफ एवरीवन एंड वन मैन्स क्वेस्ट इज द क्वेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, which is why I believe The Alchemist continues all these years later to resonate with people from different cultures all around the world, touching them with emotional and spiritual equality without any prejudice. Prejudice का मतलब होती है तासुब, बुग़्ज़, कीना, जानबदारियत. I read it Alchemist regularly, and every time I do, I experience the same sensation I felt when I wrote it. And here is what I feel. I feel happiness because it is all of me and all of you simultaneously. I feel happiness too because I know I can never be alone. Whenever I go, people understand me. Wherever I go, people understand me. They understand my soul. This continues to give me hope. When I read about clashes around the world, political clashes, economic clashes, cultural clashes, I am reminded that it is within our own power to build a bridge to be crossed. Even if my neighbor doesn't understand my religion or understand my politics, he can understand my story. If he can understand my story, then he's never too far from me. And that is the crux. देखिए, हम बहुत आसानी से एक सिक्के के एक पहलू को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन हम we deliberately refuse to go to the other part of the coin. Coin के दो हिस्से हैं, दो sides हैं. हमें हमेशा दूसरे side को भी consider करना चाहिए. There is always a chance for reconciliation, a chance that one day he and I will sit around a table together and put end to our history of clashes. And on this day, he will tell me a story and I will tell his. Fine. हो सकता है when you were a young बॉय और अ गर्ल स्कूल में थे, तो आपकी होता है ना, एक ग्रुप होता है जिससे आपकी नहीं बनती, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा या एक बंदा होगा या एक बंदी होगी जिससे आपकी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, फॉर नो रीजन, बाय द वे रीजन भी नहीं होती. यूजुअली ऐसा क्यों होता है कि सेम वाइब के लोग अगर वो इनएक्सप्रेसिव हैं एंड इफ दे डोंट नो वेल ईच अदर, तो वो इवेंचुअली बहुत सारी चीजें स्पेक्युलेट कर लेते हैं. स्पेक्युलेशन मीन्स कि अस्यूम कर लेते हैं कि ये होगा तो ये होगा. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई मीट पीपल, they think that I'm very intimidating, or I am not expressive, or I'm not friendly. I'm not sure why do they get that feeling. Yes, I'm an introvert. I probably do not start the conversations, but if I am interested in a person and I want to talk to them, I am quite warm. लेकिन ये तभी उन्हें पता चलता है जब they get to see a real side of me, or when they get to see that side of me. If I'm not interested to talk to anybody, it's very unlikely for them for be able to even approach me. That is how I take my public persona in the public. As a teacher, it's a different story. I mean, I am in a conflict with my personality. Teaching does require me to be a very social. It requires me to be very talkative or maybe very warm, which I am probably.
but it does drain your soul. Teaching is not that easy. You have to meet so many young minds on daily basis who are going through so many things, and then you have this tendency of observing things. That observation can, definitely kill a spark, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें थ्रू एंड थ्रू नजर आती हैं और आपको फिर दुख सा होता है कि काश हम उनके लिए कुछ कर सके। तो ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये जो एम्बार्कमेंट है जो हमारे राइटर ने ली, यही एम्बार्कमेंट आपको इसके प्रोलॉग में भी मिलेगी। ठीक है। The alchemist picked up a book that someone in the caravan had brought. Leafing through the pages, and he found a story about Narcissus. The alchemist knew. Alchemist कौन होता है? अच्छा, do you know who's an alchemist? Chemist समझते हैं? Who's a chemist? उर्दू में केमिस्ट्री को कहते हैं, क्या कहते हैं उर्दू में बाय द वे? किसी को पता है? कीमिया। Would you believe I've studied chemistry in my matriculation in Urdu? बायोलॉजी भी और फिजिक्स भी, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट उर्दू में पढ़ना। तो कीमिया पढ़ा हुआ है मैंने। तो खैर, इट्स अबाउट एन alchemist who is trying to mix and match certain alkanines together to come up with a new idea. So the alchemist knew the legend of Narcissus, a youth who knelt daily beside a lake to contemplate his own beauty. He was also so fascinated by himself that one morning he fell into the lake and drowned. At the spot where he fell, a flower was born, which was called the Narcissus. But this was not how the author of the book ended the story. He said that when Narcissus died, the goddess of the forest appeared and found the lake, which had been fresh water, transformed into a lake of salty tears. Why do you weep? The goddess asked. I weep for Narcissus. The lake replied. Ah, it is no surprise that you weep for Narcissus, they said, for though we always pursued him in the forest, you alone could contemplate his beauty close at hand. But was Narcissus beautiful? The lake asked. Who better than you know that? The goddesses said in wonder. After all, it was by your banks that he knelt each day to contemplate himself. The lake was silent for some time. Finally, it said, I weep for Narcissus, but I never noticed that Narcissus was beautiful. I weep because each time he knelt beside my banks, I could see in the depths of his eyes my own beauty reflected. What a lovely story, the alchemist thought. This is a symbolic story. Can you, any one of you, come up with an interpretation कि क्या मीनिंग है स्टोरी का, इस रिफ्लेक्शन का, कि जो इसको सेल्फ रियलाइजेशन लेक को एंड में जाकर होती है, जो कि एक गॉडेस प्रोवाइड करती है, इस पूरी स्टोरी का मीनिंग क्या बनता है? व्हाट डू यू थिंक? बहुत सिंपल सी बात है, अभी जो हमने पिछले 1 घंटे में बात की है वही बात यहाँ पे है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। द लेक वाज एबल टू सेल्फ रिफ्लेक्ट that it never fully understood the beauty that Narcissus possessed. ठीक है, ट्विस्ट ये है कि जो चीज हमारी दस्तरस में यानी हमारी पहुंच में होती है, वट एवर इज अवेलेबल एंड कन्वीनियंट टू अस, we refuse or we somehow neglect its importance until unless it's gone. That is how symbolic the story is. That is how thematically it focuses on um,
hypocrisy and superficial ways of looking at life. देखें, अगर हम इसे मेटाफोरिकली स्टडी ना करें तो सुपरफिशियली अब बस इतनी सी बात है कि लेक को बाद में पता चलता है, लेकिन कॉन्टेक्चुअली बात की जाए या फोरशैडोइंग की जाए, we understand that this prologue, the introductory part, introduces or it sets the tonality of the entire novel, that the character, the central character, will have a journey which will be very much similar to this person whose name is Narcissus. Okay? It's an allegory, it's a reference to another story to start a new one. Now, this is the picture that depicts the same. You see, he's looking into the lake and he's looking at his beauty. Then comes the first chapter that we'll do in the next class. बहुत छोटा सा चैप्टर है. It would be great अगर आप खुद ही पढ़ाएं तो शायद तो हम जल्दी से आगे चले जाएं. Most of you do not speak, you do not participate, and for whatever reason that is, please do make best of this course as well. I do understand some of you are not very much interested in it. You're too digital, या क्या कहना चाहिए, you're very numerical. मगर ये भी part of life है, ये भी reflection of life है. अगर mathematics reflection of science और reflection of organization है, तो जो chaos हमें stories में मिलता है वो reflection of life है. That is the mirror of society, and you are part of a society, so you should know what goes around may come around as well. ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर हम इसका फिनिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अब बेटे कोई क्वेश्चन है तो बताएं. यस, मोस्ट ऑफ द डिस्कशन दैट वी हैड was generic. It was more self-reflective. I wanted you guys to reflect upon your own feelings, and I hope, apart from Zuhaib, rest of you did have certain questions, contributions, और आपके पास भी पॉइंट ऑफ व्यूज थे जस्ट लाइक सुहेब. होने चाहिए, ठीक है. यू आर एन इंडिविजुअल, यू आर एन अडल्ट, आपके पास आपके ओपिनियंस होने चाहिए और उनकी रीजनिंग भी होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर होनी चाहिए, सो दैट यू कैन कम अक्रॉस एज समबडी हु इज एजुकेटेड. वरना कोई फर्क पता नहीं चलता है ना फिर उन बच्चों में या उन लोगों में जो रीजनिंग नहीं दे सकते. तो रीजनिंग देना, देखिए, रीजनिंग को बैकअप करना आपका काम है. बिना इमोशनल हुए लॉजिकल रीजनिंग देना सीखना है आपने, और वो इम्पोर्टेंट है. अब हम एक छोटी सी वीडियो देखेंगे बिकॉज क्लास इज अबाउट टू एंड. दिस इज द प्रोलॉग समरी एंड एनालिसिस ऑफ द एल्केमिस्ट. इट्स बाय कोर्स हीरो, जो प्रॉबेबली आपको पता होना चाहिए कि बहुत एक फेमस चैनल है. इसमें आपको जो नॉवेल्स में पढ़ाऊंगी हो सकता है सम ऑफ देम और मे बी ऑल ऑफ देम माइट बी देयर. सिर्फ 2 मिनट की वीडियो है, वो आपको छोटी सी स्टोरी बताएगा कि एल्केमिस्ट में हो क्या रहा है. ऑल्दो आई एम गोइंग टू टेल यू एज वेल, but this will also help. Let's watch it together. Could you confirm it is audible and visible to you? Yes or no? कंफर्म करेंगे तो बेटे हम फिर आगे प्ले करेंगे ना, वैसे तो नहीं. आपको ये दिखाई और सुनाई दे रहा है? यस, ओके, चलो.
So you see, the professor that you could see in the video said the same. Oh, आवाज नहीं आ रही। Unfortunately मैं तो प्ले कर दी, अब आप करेगा। चलिए कोई नहीं, मैं आपको लिंक भेज देती हूँ, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखा दूंगी। ये वही बात कर रहा है जो मैंने आपसे की, कोई बात नहीं। ये लिमिटेड लिंक ये है। We will continue this discussion in the next class, and in the next class I intend to finish the 3 chapters and the epilogue as well. ठीक है, तो अगर आप पढ़ आए, अगर आप ये 3 chapters पढ़ लें, तो this will definitely help you understand. Although we should read the entire book, it's not a big book, मगर we have to start another novel as well. So we should make sure, you should make sure कि आप इसे पढ़कर आ रहे हैं। ओके बेटे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो बता दें, किसी के पास कोई सवाल तो नहीं है? मैम जी जी। मैम जो आपने क्लासरूम में भेजे थे मार्क्स, उसमें जो असाइनमेंट 2 है वो कब हुई है? ओ एक सेकेंड। योर सेक्शन सी? यस मैम। उस पे लिखा होगा ना, आप स्क्रॉल शीट पे ना असाइनमेंट, मैं आपको दिखाती हूँ, ठहरे, लेट मी ट्राई, अगर मैंने वो आपको विजिबल किया हुआ है। सेक्शन सी इज हियर, शुड वर्क। शीट ये रही। अच्छा देखिए, स्कोर शीट जब भी आप एक्सेस करोगे तो ये जो है ना, देखिए, यू विल बी एबल टू चेक कि वो किस चीज के स्कोर है। ये आपकी स्कोर शीट है, ठीक ठीक है। तो इसमें अगर आप इसको यूं करें तो इस पे लिखा हुआ है होमवर्क 3rd मार्च, ठीक है। और ये जो आपको एक्शन प्लान, ये जो सेकंड असाइनमेंट आप जिसे कह रहे हो ना, ये जो आपने 15th अप्रैल को एक एक्शन प्लान नहीं मुझे सबमिट किया था ऑन कैंपस, ये उसका स्कोर है बेटे, ठीक है। मैम तो ऑनलाइन इसे भी तो आपको क्लासरूम में भेजा था एक्शन प्लान। वो तो उसको, वो कमेंट की बात कर रहे हो ना, यू आर टॉकिंग अबाउट द जी कमेंट। जी वो तो कमेंट, वो तो इनिशियल स्टेजेस थी ना, उसको मैम तो प्रॉपरली मोल्ड करके जो लिखना था ना, वो ये ऑन कैंपस मैंने आपको पूरी एक क्लास दी थी, तो उसकी बात है, ये वो है। उसमें कुछ 4 मैम या तो ये पता नहीं काफी 5 सारे बच्चे क्वेश्चन। एब्सेंट थे इसमें, अब सारों के 0 लगे हुए हैं। दैट्स ओके, यू स्टिल हैव मेनी असाइनमेंट्स टू गो, आप उस पे फोकस करें, 10% ही है, ठीक है। और क्विज तो एक ही हुआ है आपका मेरे साथ, मुझे लगता है, यस, वो तो आपको पता ही होगा कौन सा, और ये मिड टर्म है। तो जो भी असाइनमेंट या क्रेडिटेड टास्क आपको दिखेगा ना, उसके ऊपर आप ये हवर करोगे ना कर्सर को, तो उस पर लिखा होगा कि ये हमने क्या किया और किस डेट को किया, ठीक है। मैम हमने ऑनलाइन तो एक्शन प्लान दिया था, तो आपने फिर भी हमारे 0 मार्क्स लगा दिए। That was not counted बेटे, the counted one was on campus। जो आपने एक्शन प्लान यहाँ कमेंट में दिया है, वो तो क्या कहते हैं, टॉपिक सिलेक्शन थी ना। लेट मी सी, 1 मिनट। मैम तो जो नहीं आए थे बच्चे वो क्या करें अब? I'll tell you in the next class इंशाल्लाह। और एक और कंसर्न है, आई हैव अ कंसर्न, सम ऑफ यू आर कैजुअली एब्सेंट, ठीक है। आप अपनी अटेंडेंस को भी अपने माइंड में रखें। आई वुड लाइक टू हाईलाइट सम स्टूडेंट्स, वी हैव मुदस्सिर अहमद, I think there's only one presence. Muzammil Rashid Khan, you're never there. Abdul Muneeb, आप तो एक ट्रिक्स्टर भी हैं। I would like to meet you. I don't know which one are you, लेकिन मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी। अली सुहेल, कम है बेटे आपकी अटेंडेंस, ठीक है। आप लोगों ने अब छुट्टी नहीं करनी। मेक श्योर दैट यू आर नॉट एब्सेंट। अबू बकर, आपकी भी 4-5 एब्सेंटीज दिख रही है। तो हफ्ते में एक क्लास होती है, अगर आप एब्सेंट होंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्लीज डू नॉट बी एब्सेंट, ठीक है। और बेटे एनी अदर कंसर्न? Okay, if that's all, I will not take any longer. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care.